So thank you everyone. Thank you for attending this session. And हमने invocation से start किया है. So we are on a different journey altogether at this point of time, because reading sessions are going to be very very purposeful. Not that they were never purposeful. So this is, आप सभी को screen दिखाई दे रही है? Okay. So welcome to Beads of Devotion. Beads of Devotion. अभी हमने जप माला की. So there is called something as मृदंगा. ठीक है, इट इज़ यूज इन कीर्तन. मृदंग पता है सबको क्या है? तो आइंद्र प्रभु एंड ऑफ कोर्स उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद वुड टॉक अबाउट बृहत मृदंगा. है ना? बृहत मृदंगा मीन्स बुक्स, शास्त्र संगा, राइट? एनीथिंग. Books are called Brihat Mridanga because they assist the Mridanga. They assist our Kirtan, our Japa. Japa is also Kirtan. जब हम मंदिर में बैठ के या संग में बैठ के जप करते हैं वो संग कीर्तन का रूप लेता है. तो बृहत मृदंगा, राइट? एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फोकस ऑन बृहत मृदंगा टू डेवलप लव इन आवर हार्ट्स फॉर कृष्णा इज ऑब्वियसली थ्रू रीडिंग शास्त्र. एंड जो प्रेम रस है भगवान के लिए वो श्रीमद् भागवतम में बहुत एक्सपेंसिवली मेंशन्ड है. सो आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. सो वेलकम टू श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, चैप्टर 1, वर्स 1. Right? The absolute truth from whom everything emanates. है ना? भगवान श्री कृष्ण is the primeval Lord, right? He is the fountainhead of all incarnations. इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं. So, जो हम इन्वोकेट करते हैं, whether it is a small class, whether it is japa session, whether it is Bhagavad Gita class, we always start with Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ऐसा क्यों है कि प्रहलाद महाराज ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर करके भगवत प्राप्ति भी की और अपने पूरे कुल का भी उन्होंने ही लिबरेटेड हिज एंटायर डायनेस्टी. हालांकि वो एक राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उस राक्षस कुल को भी उन्होंने, है ना, उसका उद्धार किया. सो जो पूरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्य अस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्तेष्व अभिज्ञैस्वराट् तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मूयन्ति तत्सूरयः तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि. जो ट्रांसलेशन है, क्या किसी कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? वर्षा माता जी, आप पढ़ पाएंगे? ओके माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. हरे कृष्णा प्रणाम माता जी. O my Lord, Sri Krishna, son of Vasudev, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. I meditate upon Lord Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustaining, and the destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is the independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him even the great sages and demigods are placed into illusion as one is
bewildered by the illusory representation of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifesting by the recreation of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. Uh, लिख नहीं रहा था बेटा unreal. Therefore, therefore, Let me help you, meditate Mataji. upon. I therefore meditate upon him, Lord Shri Therefore, Krishna. meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is internally existent in the transcendental abode by which is forever free from the illusory representation of the material world. I meditate upon him, for he is the Absolute truth. absolute truth. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. Sorry for the No, not at all. Good morning. So, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में है ना इतने सारे की वर्ड्स एंड टेकअवेज हैं यहाँ पर, राइट. भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं. ही इज़ ऑल परवेडिंग, राइट. ही इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ. ही इज़ द प्रिमेबल कॉज. सृष्टि की रचना, उसकी सस्टेनेंस यानी मेंटेनेंस और उसका विनाश भी उन्हीं के कारण होता है. वो स्वराट हैं, वो विराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, है ना. उन्होंने जो परम ज्ञान है उन्होंने ब्रह्मा जी को पहले दिया, और जो अन्य सारे जो भी संत हैं, जो सेजेस हैं, जो देवी देवता हैं, वो भी ब्रह्म में आ जाते हैं, है ना. और उन्हीं की कृपा से जो प्रकृति के 3 गुण हैं, है ना, उनसे इस मटीरियल भौतिक संसार का गमन होता है, अनुगमन होता है, आना जाना, एंट्री एग्जिट होता है, राइट. जो श्रील प्रभुपाद हैं यहाँ पर अपने तात्पर्य में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन करते हैं. वो बताते हैं कि जो व्यासदेव हैं वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले डाउन कर रहे हैं इस बात पर कि कृष्णा इज़ द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. वाई द वर्ड ओरिजिनल? क्योंकि उन्हीं से ही उनके बाकी अवतार अवतरित होते हैं, उन्हीं से ही मटेरियल वर्ल्ड्स की क्रिएशंस होती हैं, राइट. उन्हीं की कृपा दृष्टि से, है ना, जो प्रकृति है इट इज़ इम्प्रेगनेटेड, है ना, एंड हमें इतने सारे पैरेलल यूनिवर्सेस मिलते हैं. सो कृष्णा इज़ द फाउंटेन हेड. हम अगर देखें तो ट्रांसलेशन में लिखा है ही इज़ ऑल परवेडिंग, है ना. ऑल परवेडिंग का अर्थ ही यही होता है कि वन थिंग वन समथिंग इज सेड टू बी परवेडेड जब वो चीज़, वस्तु या पर्सन हर जगह प्रेजेंट हो, राइट. जैसे हम कहते हैं ना कि एयर इज़ ऑल परवेजिव. हवा हर जगह है ना. हवा ऐसे से करोगे हवा फील होती है. यू कांट सी इट इन दिस केस बट इट इज़ ऑल परवेजिव. इट इज़ ऑलवेज देयर, है ना. सो कृष्णा इज़ ऑल परवेडिंग. ही इज़ ऑल परवेजिव, है ना. एंड जो ब्रह्मा जी हैं, ही इज़ दी ओरिजिनल लिविंग बीइंग, है ना. वो इसको और विस्तार में बताते हैं अपनी स्तुतियों में. जो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो स्तुति गाते हैं ब्रह्म संहिता में. ही सेज गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी. आफ्टर एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के एंड में वो खुद को स्मरण दिला रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, है ना. अब जो ब्रह्मा जी हैं वो इस पूरे भौतिक संसार की रचना करते हैं, लेकिन भौतिक संसार की रचना करने का जो ये उनको टास्क दिया है, ये जो पोटेंसी, ये जो पावर्स हैं उनके पास, वो सुप्रीम क्रिएटर से आती हैं. दैट इज़ वाई गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. अगर ब्रह्मा जी एक मटीरियल वर्ल्ड के क्रिएटर होने के बावजूद is calling somebody else the cause of all causes, so the buck does not stop at Brahma ji, है ना. ब्रह्मा जी
फ्रॉम ब्रह्मा जी टू द इनसिग्निफिकेंट एंट, हम सभी इस भौतिक संसार के जीव हैं, हम सब की एक शेल्फ लाइफ है ना. वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अदर सिचुएशंस. हम सब अपने सर्कमस्टांसेस के बाउंड, जो हमारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं लाइफ में, है ना, उसके अंतर्गत ही हम जीते हैं. वी हैव अ बॉक्स अराउंड अस, है ना. वी हैव अ बॉक्स अराउंड आवर कैपेबिलिटीज. वी आर लिमिटेड. कृष्णा इज अनलिमिटेड. हमारा अंत है, अंत निश्चित है. भगवान श्री कृष्ण का, हाँ, हमारे, सिंस हम स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं लेकिन हम इस स्थूल शरीर में कैद हैं, तो यस, इस शरीर का अंत लिमिटेड, अंत निश्चित है. वी आर लिमिटेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. लेकिन भगवान अजन्म है ना, अमृत है ना, है ना. तो इसलिए कृष्णा बॉडी एंड सोल हैज़ नो डिफरेंस. ही इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑल टुगेदर. सो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, और बार बार अपनी भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन उसमें कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण इज़ द प्रिमेबल लॉर्ड, राइट. ही इज़ द प्रिमेबल लॉर्ड एंड ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. सर्व कारण कारणम, है ना. कृष्णा इज सर्व कारण कारणम. एंड भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते गाते, है ना, जब वो गोविंदम, है ना, व्हेन ही स्पीक्स द वर्ड, जब भागवतम कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्णा, व्हाट डज कृष्णा मीन, है ना. कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, है ना. वेदर इट इज़, चाहे हम गजेंद्र मोक्ष लीला के बारे में बात करें, गोवर्धन लीला के बारे में बात करें, या ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ जो हैं उनके बारे में बात करें, या नारद मुनि जो स्तुति गाते हैं उसके बारे में बात करें, या कपिल मुनि के संदर्भ की बात करें भागवतम में. सो दे ऑल इन वेरी डिफरेंट वेज दे डिस्क्राइब कृष्णा, है ना, इन मैनी 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 वर्ड्स, है ना. बट टू कीप कृष्णा in two words is very difficult, yet Krishna means all attractive. And भगवद गीता में और अन्य काफ़ी जगहों पर कन्फर्मेशन है कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. और बहुत सारे महान पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या की है. जैसे अर्जुन है ना. Arjun begins Bhagavad Gita with asking questions. Towards the end, he declares boldly that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Similarly, नारद मुनि, व्यास देव और अन्य ऋषि मुनि और अन्य ऐसे महान आत्माएं भी इसका बखान करते हैं. नारद सारद सहित अहिंसा, है ना. सो जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं. पद्म पुराण में भी बहुत डिटेल में व्याख्या है इस बात की. सो जब हम कहते हैं सर्व कारण कारणम, है ना, एंड व्हेन वी स्टार्ट द श्लोक विद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. एंड चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो जो भागवत पुराण है, ही कॉल्स इट द स्पॉटलेस पुराण. स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई खोट नहीं है ना. वैसे तो जो सभी पुराण हैं वो इतने दिग्गज हैं, खोट तो किसी में नहीं है. लेकिन महाप्रभु भागवत गीता को भागवत महापुराण कहते हैं. ही कॉल्स इट द स्पॉटलेस पुराण बिकॉज ये वो लिटरेचर है, ये वो वैदिक लिटरेचर है जिसमें जो भगवान के दिव्य नाम हैं, जो उनकी लीला हैं, उनका उल्लेख विस्तार में किया गया है, विस्तार में. और स्वयं जो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है व्यासदेव, है ना, उन्होंने इसकी रचना की है. लेकिन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ये गुह्यम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो ज्ञान है, विस्तार में बताया,
So similarly, Vyasdev, who is Krishna's literary incarnations, his literary incarnation also accepted a spiritual master. There is a reason why Bhagavad Gita 4.1 states, Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvan manave praha manurikshvakavya bravit. है ना? So Krishna is the spirit, is the supreme most spiritual master, और वहाँ से एक कड़ी दूसरे कड़ी से बनती है, फिर दूसरी तीसरी चौथी से, and then we have this line of disciplinic succession where the message is kept intact, सब कुछ as it is रहता है. तो similarly, है ना, to be in line with the teachings of Shastra, Vyasdev accepted a spiritual master. है ना? Vyasdev also accepted a spiritual master in नारद मुनि. है ना? नारद मुनि जहाँ भी भगवान लीला करने जा रहे होते हैं, वहाँ नारद मुनि कुछ समय पहले पहुँच के पूरा ना ही इज़ सेटिंग द सीन. है ना? थ्रू आउट भागवतम कृष्णा विलिंग हमें ये विटनेस करने को मिलेगा. सो भगवद गीता 4.34, this actually shows humility on Krishna's part as well, that Krishna is the first person to walk his talk. है ना? And Krishna says in Bhagavad Gita 4.34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. भगवान स्वयं खुद को एक डिसाइपल की पोजीशन में डाल रहे हैं. भगवान स्वयं is accepting a spiritual master. Then it always raises a question, at least in my mind, then what is the need of ego of any kind in our mind or heart? हमें इस false ego में, इस भ्रम में जीने की क्या ही आवश्यकता है? If Krishna is showing such humility, at least I can show some basic signs of humility. है ना? अगर humble नहीं हो तो ढोंग ही कर लो humble होने का. है ना? अगर humble नहीं हो तो हम ह्यूमिलिटी का ढोंग ही कर लो. है ना? कम से कम सही चीज़ का ढोंग तो कर रहे होगे. है ना? सो देयर इज दिस सेइंग फेक इट टिल यू मेक इट. है ना? देयर इज दिस सेइंग फेक इट टिल यू मेक इट. सो बेसिकली आई एम नॉट प्रोपगेटिंग दैट फिलोसफी, बट व्हाट इट मीन्स इज दैट even if you do not have acceptance for something and you know it is the right thing to do, at least walk on that path. है ना? Though you might have tendencies of not walking on the path, but you know it's the right path, at least start walking on it. है ना? है ना? माला नहीं हो रही सही कॉन्शियसनेस में, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि माला करनी छोड़नी है. ना? स्टार्ट द प्रोसेस. है ना? यस, बट नॉट विद द इंटेंशन कि हाँ, यस, बट डोंट फेक इट टू मच. यू थिंक यू हैव, yes, be humble enough to know that you are a work in progress throughout. है ना? So even व्यासदेव ने एक स्पिरिचुअल मास्टर की शरण ली. है ना? एंड इससे जो भगवान श्री कृष्ण है, what he is instructing us is that shastras should always be discussed in sangha. Right? It should be talked upon in the association of devotees. इस प्रकार हम धाम जाते हैं, परिक्रमा करने आते हैं, काफ़ी डिवोटीज़ हैं जो अकेले निकल जाते हैं, विच इज़ ओके. कॉन्स्टेंट्स होते हैं अकेले निकलने, कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते, निकलना ज़रूरी है ना? लेकिन अगर धाम की महिमा जाननी है तो हमेशा वी शुड गो एंड ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ डिवोटीज़, लाइक माइंडेड डिवोटीज़, जो आपको धाम की महिमा बताएंगे. है ना? जो आप उस थली में बैठ के आपको बताएंगे कि वहाँ हुआ क्या था. राइट? तो इसलिए इवन व्यासदेव इज एक्सेप्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर बिकॉज उनके हृदय में हु इज़ अबाउट टू फैन द स्पार्क. द गुरु इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड टू फैन द स्पार्क. है ना? द स्पार्क इज देयर, इट्स डॉर्मेंट. है ना? It's a volcano that is a silent volcano. Now, the volcano needs to be stimulated. जो आत्मा needs to be stimulated. We all need to be spiritually stimulated. है ना? So that the dormant soul, the soul that we are,
है ना, एंड हमने इसके रिचेस को एक्सप्लॉइट नहीं किया है ना, कि इसकी कौन सी इस सेवा, इस हृदय में जो सोल बैठी हुई है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सेवा भाव का है ना, इसको हमने रियलाइज़ नहीं किया है। तो वो रियलाइजेशन हमें कौन कराता है? हु मेक्स अस फैन द स्पार्क? गुरु डस। सो हमें ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, ग्रेजुअली हमें शास्त्रों का संग लेना चाहिए, है ना। एवरी पेज वी टर्न, इट्स अ पेज क्लोजर टू कृष्णा, अ पेज क्लोजर टू कृष्णा, है ना। वी गेट टू नो मोर अबाउट हिम, है ना। बट वी ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विद लेवल 1। हम भक्ति वृक्षा करिकुलम फॉलो करते हैं तो हम लेवल 1 श्रद्धावान पर है ना। हम भगवद गीता स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, श्लोक 1 से, धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। इट्स अ क्वेश्चन। हम रामायण जब स्टार्ट करते हैं तो फिर वी स्टार्ट विद वाल्मीकि मुनि आस्किंग अ क्वेश्चन टू नारद मुनि, अगेन नारद मुनि आ गए, है ना, है ना। कौनोऽस्मिन् सम्प्रतां लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञ नक्षकृतज्ञ नश्च सत्य वाक्य दृढ़ता। सो वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं नारद मुनि से कि ऐसा कोई कोई इज देयर एनीवन विद दीज क्वालिटीज? लिस्ट 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 क्वेश्चन। अब जब हम भागवतम के आगमन में हैं, व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद भागवतम, इट फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 वर्स 1, चैप्टर का नाम क्वेश्चंस बाय द सेजेस है। तो शास्त्र ऐसी चीज़ है, इट इज़ सो साइंटिफिकली क्रिएटेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ, एंड सिंस इट इज़ कंसिस्टेंट इन एवरी योगा, एट एवरी एंगल यू लुक एट अ शास्त्र, डिफरेंट शास्त्रों को आप डिफरेंट एंगल से देखो, दे ऑल शो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ साइन ऑफ समथिंग विच वी कैन कॉल साइंटिफिक, है ना। सो क्वेश्चंस बाय द सेजेस, है ना, प्रश्न पूछने की महिमा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, एंड एवरी शास्त्र बिगिंस विद अ सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड है, इट्स एन एनकरेजिंग प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू शास्त्रस। पता चलता है कि हमारे दिमाग का चक्का चल रहा है, वी आर थिंकिंग, है ना। सो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने कमेंट्री में दैट कृष्णा इज़ नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बट द डिस्ट्रॉयर एज वेल। और अगर आप इस श्लोक में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि yes, the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction, है ना, primeval cause। अब ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो तीनों मिनिस्ट्रीज हैं, क्रिएशन का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है, सस्टेनेंस का भगवान विष्णु के पास है, डिस्ट्रक्शन का भगवान शिव शंभू के पास है, राइट। लेकिन द ओपनिंग इज़ वेरी बोल्ड। यहाँ पे लिखा है कि कृष्णा इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, सुप्रीम ब्रह्मन जिसको कहते हैं हम, एंड ही इज़ द प्रिमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ क्रिएशन, सस्टेंस एंड डिस्ट्रक्शन। इसका अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण सुपरसीड्स ऑल दीज थ्री डीटीज, है ना। भगवान श्री कृष्ण सुपरसीड्स ऑल दीज थ्री डीटीज, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल थ्री, ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल थ्री। एंड इसीलिए इस पूरे संसार में, है ना, इस पूरे संसार में जब भी कोई एक्टिविटी होती है या कोई भी चीज़ एक्टिवेट होती है या कुछ चीज़ होनी होती है ना या नहीं होनी होती है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन वन थिंग। श्री प्रभुपाद सेज द सुप्रीम विल इज़ बिहाइंड ऑल कॉस्मिक एक्टिविटीज़, सुप्रीम विल, ठीक है। सो प्रभुपाद इज ऑल्सो प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ कृष्णा विलिंग, है ना। सो कृष्णा विलिंग ये होगा, कृष्णा विलिंग वो होगा, है ना। सो कृष्णा विलिंग, कृष्णा wills when we will it first. So there is this very
common saying in the Bible. So जब मैं स्कूल में था तो I studied in a convent. तो मेरे स्कूल की जो टैगलाइन थी, इट वाज लव योर नेबर एज योर लव योर नेबर एज योर सेल्फ. ठीक है ना. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना. सो वी नीड टू विल इट फर्स्ट. Depending on the intensity of our burning desire, Krishna reciprocates. And when the desire is such that it's going to increase your bhakti, your level of surrender for Krishna, and if it is prayed in such a mood that, oh Krishna, this is very lucrative for my bhakti, इस माध्यम से, ठीक है, इस शेल्टर से या इस संगति से, इस वस्तु से, इस पर्सन से, है ना, आई विल बी ड्रॉन क्लोजर टू यू, आई विल सर्व यू इवन मोर. भक्ति में मैं आगे बढ़ूँगा, बढ़ूँगी, है ना. देन दोज प्रेयर्स आर रेसिप्रोकेटेड बिकॉज कृष्णा के पास टाइटल है ना भक्त वत्सल होने का, है ना. सो ग्लोरिफिकेशन, स्तुतिज in a prayerful mood are reciprocated by Krishna. And reciprocation happens between two individuals. Krishna is an individual as well. He is a personality as well. Yes, he is the supreme personality. उनसे सभी जो different ये जो personalities हैं like ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबका manifestation उन्हीं से होता है. But yes, he is an individual. And अगर हम इर्द गिर्द देखें तो वी विल एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन कि जो ये क्रिएशन है, जो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, कितनी सुंदर है. मटेरियल वर्ल्ड की ही बात कर लें. व्हेन यू गो टू हिमाचल, व्हेन यू गो टू उत्तराखंड, व्हेन यू गो टू जम्मू कश्मीर, व्हेन यू गो टू द कोस्टल लाइंस ऑफ बंगाल और गोवा, फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आप दूसरे जीव जंतु, आप पीकॉक्स को देखें, आप टाइगर्स को देखें. कृष्णा ने कितनी सुंदर इस सृष्टि की रचना की है. So if the creation is so beautiful, the creator must be so beautiful, है ना. And we are just talking about this material world, है ना. I was seeing this video of Amarendra Prabhu where he was taking a peacock feather and he could read the word Radhe written on the peacock feather, है ना. And then he was explaining कि why Krishna wears the peacock feather always, right, है ना. श्रीमती राधा रानी का नाम वो अपने सर पर चढ़ा कर रखते हैं, है ना. सो आई ऑल्सो ट्राई टू स्पॉट द लेटर, श्रीमती राधा रानी's name, and I could see it in his grace Amarendra Prabhu's way, Amarendra Prabhu's way, right. My go-to reference is Amarendra Prabhu because he also could see it, right. So Amarendra Prabhu would see it and I could see how he saw it. So if the creation, just the material creation, जिसको इस श्लोक में अनरियल माना गया है, अनरियल इस सेंस में माना गया है, अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ें तो मटीरियल वर्ल्ड को अनरियल बोला गया बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग. इट्स नॉट द ओरिजिनल थिंग, इट्स नॉट द परमानेंट थिंग. येस इट एग्जिस्ट्स, ठीक है, बट यहाँ पे सब कुछ भ्रम है. एंड दैट इज़ वाई अनरियल. अनरियल इसलिए है, भ्रम इसलिए क्योंकि इस संसार से जीवात्मा को निकलने का प्रयास करना चाहिए. यहाँ पे सैटल नहीं होना चाहिए, ठीक है. आवर पेरेंट्स से ओ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट सेटल डाउन, है ना. सो डोंट, यहाँ पे ना 1+ वाला मॉडल ले आओ, नेवर सेटल हियर, ठीक है. 1+ का टैगलाइन है ना, नेवर सेटल. सो इस मटेरियल में वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में नेवर एवर सेटल, राइट. वी शुडंट सेटल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो इफ द मटेरियल क्रिएशन जो हम अभी अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, दो इट इज़ अनरियल, भ्रम है, इल्यूजन है, येट इट इज़ सो ब्यूटिफुल, देन जस्ट इमेजिन द ब्यूटिफुल माइंड, द ब्यूटिफुल personality and the beautiful form of that personality who did all this, है ना. So अगर आप बस इस बात का अनुमान करें, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इफ़ अ मैन जो इफ़ वी ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस अ स्पेस सैटेलाइट, है ना,
जो स्पेस सैटेलाइट होती है वो दिन में 16 चक्कर काट लेती है पृथ्वी के, ठीक है, 16 चक्कर, है ना, 16 times a day it revolves around planet Earth at massive speed like 16,500 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर इंसान ऐसी वस्तु बना सकता है जो इतने मैसिव एंड ब्यूटीफुल कार्य कर रही है रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट दोज पर्सनैलिटीज हु आर फार सुपीरियर देन अस, व्हाट कैन दे डू, है ना। ब्रह्मा जी इस एक ही हिमसेल्फ हैज़ अ शेल्फ लाइफ, वो भी एक प्राणी ही हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में, लेकिन जस्ट इमेजिन व्हाट ब्रह्मा जी कैन डू, है ना। जस्ट इमेजिन, लेट्स गो इवन सीनियर व्हाट भगवान शिव शंभू डज, बाय एक्सटेंशन व्हाट कैन कृष्णा डू, ना। लेट्स गो इवन फर्दर व्हाट श्रीमती राधा रानी कैन डू, राइट। सो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उल्लेख कर रहे हैं दैट देयर इज नो परातत्व देन हिमसेल्फ, है ना। परातत्व मीन्स देयर इज नथिंग सुपीरियर टू हिम। लेकिन इस रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए ना हमें किसी ने एक वर्ड मेंशन किया था चैट बॉक्स में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो अब जाके मैं यूज़ कर रहा हूँ। इट वॉज इन माई माइंड, आई हैड स्टोर्ड इट राइट हियर, नाउ आई एम यूजिंग इट। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शास्त्र पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंस है। भगवद गीता समझने के लिए अगर आप 18 अध्याय पे पढ़ेंगे और अगर आप इसे इतना पढ़ लिया, अगर समझ लो आप भगवद गीता को ऐसे खोलें और 18 अध्याय और सडनली आपने पढ़ लिया यथेचसी तथा करो, कृष्णा कह रहे जो मन में आए करो, जो मन में आए करो, ठीक है। आज मेरा पड़ोसी जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है है ना। भगवान ने कह दिया करो, है ना, जो मन में आए करो। या सिमिलरली अगर आपने श्रीमद् भागवतम को रैंडमली खोल दिया, 10th कैंटो पे आ गए आप, ठीक है, और सीधा रासलीला डांस आपने पकड़ लिया, है ना, या रामायण आपने पकड़ ली और सडनली बस वो पन्ना खुला जिसमें, है ना, सीता मैया को जो नगरी अयोध्या नगरी के लोग हैं उन पे आंच लगा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, यू विल लैक कॉन्टेक्स्ट, आपको तो समझ ही नहीं आएगा, आपकी तो नैया डूब जाएंगी, है ना, आप तो वहीं पे बंद कर देंगे किताब को, है ना। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार हम शास्त्र पढ़ें, वरना हमें समझ नहीं आएगी। अरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ने के बावजूद हमें समझ नहीं आ रही, है ना, अगर रैंडमली अगर आप पढ़ोगे तो फिर यू आर गारंटीड लॉस्ट, है ना, है ना। सो प्रभुपाद कहते हैं और अपने इस तात्पर्य में भी उल्लेख कर रहे हैं कि क्रम के अनुसार शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। एंड जो गायत्री मंत्र है उसका पब्लिकली मैं उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन उसमें वर्ड धीमहि आता है, ठीक है, धीमहि, राइट। सो इफ़ यू नोटिस इस श्लोक में इट एंड्स विद धीमहि। सो प्रभुपाद सेज कि ये जो भागवतम है और ये जो पर्टिकुलर श्लोक है ये इन्वोकेशन श्लोक है, एंड ये गायत्री मंत्र का आह्वान कर रही है ये श्लोक, है ना। एंड जो गायत्री मंत्र इट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर स्पिरिचुअली एडवांस्ड पीपल, राइट। तो श्रीमद् भागवतम की रीडिंग स्टार्ट करनी बहुत अनिवार्य है, लेकिन उससे पहले, है ना, जब आप श्रीमद् भागवतम इज़ लाइक ग्रेजुएशन, आप अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन बैचलर्स डिग्री किसी भी कॉलेज में एलिजिबल होने के लिए यू नीड टू क्लियर योर क्लास 12 विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना। हमारी स्कूलिंग भगवद गीता है, हमारी ग्रेजुएशन, हमारी बैचलर्स श्रीमद् भागवतम है, हमारी मास्टर्स चैतन्य चरितामृत है ना। एंड उसके बाद जो हमारी
डॉक्टरेट्स या PhDs के जो परसूट में होंगे, दे विल बी स्टडिंग शास्त्रस लाइक बृहद भागवतम, ठीक है ना. वी हैव अदर फीचर्स लाइक चैतन्य भागवत, है ना. वी हैव कॉमेंट्रीज बाय अदर वैष्णवाचार्यस, है ना. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बहुत महिमा है. एंड भागवतम इज़ फुल ऑफ लव फॉर कृष्णा. यहाँ पर भगवान भक्ति का प्रेम रस उमड़ उमड़ के निकलता है. सो इफ़ वन स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडीज श्रीमद् भागवतम, उनके हृदय में भक्ति लता का बीज, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का बीज आना निश्चित है. You will be bound by the love of Krishna, है ना, and Krishna will be bound by your love as well. And a person who falls in love with Krishna will not find it difficulty, है ना, will not find it difficult to love other beings as well, right? So if a person a devotee is expected to have all good qualities that make up a decent human being, like love, love, care, affection, humility, है ना, consideration, compassion, है ना. A devotee is expected to be a good human being, है ना. So जो श्रीमद् भागवतम है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आई विल कोट अनकोट हिम बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्पीक दिस आउट ऑफ टर्न. श्रीमद् भागवतम इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी. A 2-hour session can be taken on this specific line. श्रीमद् भागवतम इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप, जो भगवान का चरित्र है. जैसे प्रभु श्री राम का चरित्र क्या है? रामचरितमानस, है ना. तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है ना, उसका उल्लेख, उसका प्रेम रस है श्रीमद् भागवतम. इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी. और इसका जो एंट्री है, इसका जो आगमन है, आगमन इज़ द राइट वर्ड ना, आना. गमन मीन्स टू गो, आगमन मीन्स टू कम. इसका जो आगमन है, ये भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति ने किया है, ठीक है, वो श्रीमती राधा रानी. तो श्रीमद् भागवतम प्रेम रस से इसलिए भरा हुआ है, परिपूर्ण है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने ही इसका उल्लेख सबसे पहले सुख, है ना, इसलिए इसमें इतना सारा प्रेम है. इस श्लोक में व्यासदेव जो हैं, है ना, वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में, है ना. सो यहाँ पर एक उपमा दी गई है ना. उपमा कुछ ऐसी है कि जो सभी देवी देवता हैं, दे आर प्लेस्ड इनटू इल्यूजन एज वन इज बिविल्डर्ड बाय द इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वाटर सीन इन फायर और लैंड सीन ऑन वाटर, है ना. तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, वो हम सबको भ्रम में रखती है इस संसार में. जैसे डेजर्ट में मिराज होता है ना, लगता है कि पानी है ना, लेकिन इट्स ड्राई लैंड, है ना. तो फिर बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के बीच में फ़र्क बताया गया है. व्यासदेव ने डिस्टिंग्विश किया इंटरनल पोटेंसी को एक्सटर्नल पोटेंसी से. इंटरनल पोटेंसी को परमानेंट एवरलास्टिंग भक्तिमय बताया गया है, और एक्सटर्नल पोटेंसी को टेम्पररी, है ना, शॉर्ट टर्म, है ना, लिमिटेड टाइम पीरियड बेनिफिट्स ओरिएंटेड ऐसे बताया गया है, राइट. सो श्रील प्रभुपाद एक उपमा देते हैं. यहाँ पर लिखा है ना, कृष्णा इज द प्रिमिवल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ द क्रिएशन. आप सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, सेकेंड थर्ड लाइन में, राइट. तो श्रील प्रभुपाद इसको समझाने के लिए ना एक अच्छी उपमा बताते हैं. वो कहते हैं कि जैसे कोई चीफ इंजीनियर होता है और वो बहुत ज़्यादा ना एक कॉम्प्लिकेटेड, समझ लो कोई इमारत बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो
तो वो जो चीफ इंजीनियर होता है वो क्या वो वहाँ पे खड़े होके एकदम पर्सनली सब कुछ कंस्ट्रक्ट करता है? क्या वो खुद सारा ईंट, है ना, बदरपुर, पीओपी, सीमेंट, है ना, तराई करनी ब्रिक्स की, पानी डालना, सरिया, ये सब कुछ वो खुद डाल रहा होता है? ज़रूरी नहीं है। तो जो चीफ इंजीनियर होता है वो पर्सनली डज नॉट टेक पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन, बट उस चीफ इंजीनियर को हर नुक, ही नोज एवरी नुक एंड कॉर्नर, उसको हर इंच का पता है उस इमारत के बारे में, बिकॉज सब कुछ उनके सुपरविजन, उनकी डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो कृष्णा इज जस्ट लाइक दैट चीफ इंजीनियर। उनके अंडर इतने सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आर इन प्लेस, जो हाँ उस पुल, उस इमारत को कंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं, है ना। somebody is, है ना, somebody is taking care of architecture, विश्वकर्मा जी। somebody is on site making sure that कि वो जो इमारत है वो टाइमली फिनिश हो, ब्रह्मा जी, है ना। सो ही इज़ द चीफ इंजीनियर। सो भगवान श्री कृष्ण इज जस्ट लाइक द नॉट, ही इज़ नॉट द CEO ऑफ द कंपनी, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, जो गोल्फ कोर्स गए हैं और गोल्फ खेल रहे हैं, है ना। भगवान विष्णु इज़ लाइक द CEO ऑफ द कंपनी, वो सारा हैवी वेट कर रहे हैं, माथा पची कर रहे हैं, एंड ही इज़ रिपोर्टिंग टू कृष्णा कि माई डियर लॉर्ड, दिस इज़ वट हैज़ बीन डन, है ना, प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीट, सो एंड कृष्णा सिंह, मुझे परेशान मत करो, आई नो व्हाट्स हैपनिंग, है ना, यू डू योर सेल्फ, ठीक है, दिस इज़ योर पोजिशन, आई हैव एलोकेटेड इट टू यू, भगवान शिव शंभू एंड ब्रह्मा जी, आई एम श्योर, है ना, सिंस यू आर माई पार्ट्स एंड पार्सल्स, ऑल ऑफ यू, है ना, you will do the needful. So, beginning from Brahma down to the insignificant ant, no one is independent of material creation, है ना। So, अगर एक सोने की माइन है ना, तो उसमें एक और उपमा श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जो सोने की माइन है दैट इज़ कृष्णा, एंड उस माइन से बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम सोना निकालते रहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, एंड उससे हम कभी सोने की रिंग बना रहे हैं, कभी एक नेकलेस बना रहे हैं, हार बना रहे हैं सोने का। तो क्या वो सोना, जो थोड़ा सा सोना उस रिंग में है ना, हाँ, ओह डिडंट रियलाइज, तो जैसे सोने की रिंग है, क्या वो सोना और जो उस सोने गोल्ड माइन में सोना है, कि क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। क्वालिटेटिवली हम और भगवान सेम है, क्वांटिटेटिवली बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक एज कृष्णा, सत चित एंड आनंद, ठीक है ना। वी आर ट्रूली फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, है ना, बट वी आर बाउंड बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, कृष्णा इज नॉट। एंड इस कंसेप्ट को, दिस साइमल्टेनियस वननेस क्वालिटेटिवली एंड डिफरेंस क्वांटिटेटिवली इज कॉल्ड अचिंत्य भेद अभेद। भगवान माया के इल्यूजन में नहीं है, हम माया के चपेट में हैं। ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द सुप्रीम क्रिएटर। हम सब जीव आत्माएं हैं जो यहाँ पे भटक रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन डिसीजंस। वी हैव द पावर ऑफ चॉइस, वी हैव द पावर ऑफ यथेजसी तथा कुरु, हमने एक्सप्लॉइट किया इसको। सो कृष्णा इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है ना। ही इज़ द सोर्स of all sources, he is the cause of all causes, है ना। and Krishna is the primary creator, है ना। when we come to Brahma ji, he becomes the secondary creator, है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, जहाँ पर दो वर्ड्स का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट लाइन के एंड में 2 है, अभिज्ञा एंड स्वराट। So Krishna is Abhigya. Abhigya means fully cognizant, full of knowledge and awareness. Krishna knows everything. Krishna knows आपके हृदय में क्या है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो 15.15, है ना। कृष्णा कण कण में भगवान है। जैसे प्रहलाद महाराज को हर जगह, हर एयर पार्टिकल में, हर पत्ते में, हर फ्लावर में, हर ट्री में, एनिमेट इनएनिमेट, है ना, पत्थर में, पहाड़ में, क्लाउड्स में, सूरज में, है ना, नदियों में, हर जगह भगवान दिख रहे हैं।
है ना, बिकॉज कृष्णा इज फुल्ली कॉग्निजेंट, ही इज एवरीवेयर इन एवरी एटम, एंड कृष्णा इज स्वराट, ही इज इंडिपेंडेंट, है ना. सो सिंस कृष्णा इज फुल्ली कॉग्निजेंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट, वो अभिज्ञा हैं और स्वराट हैं, हेंस ब्रह्मा जी हैज़ टू मेडिटेट अपॉन कृष्णा इन ऑर्डर टू क्रिएट, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, वो नहीं, है ना. सो बड़े बड़े जो दैत्य दानव और एथीस हैं, रावण और हिरण्यकश्यप, उन्होंने भी, है ना, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, ब्रह्मा की तो तपस्या की, है ना, और बहुत बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आए थे एलआईसी की, ये क्लॉज वो क्लॉज, इनने ना मारना उनने ना मारना, है ना, ई ना होने देना ऊ ना होने देना यहाँ बचा लियो वहाँ बचा लियो, पूरी लंबी लिस्ट लेकर आए थे ब्रह्मा जी के पास. ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, है ना. ब्रह्मा जी वाज लाइक, अब तो ही हैज आस्क्ड फॉर एवरीथिंग, बट कृष्णा न्यू दैट नो नो नो, ही हैज नॉट आस्क्ड फॉर एवरीथिंग, है ना. वो बद्ध जीव है, ब्रह्मा जी बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव से कुछ मांग रहे हैं, है ना, है ना. बद्ध जीव से कुछ मांगेगा तो क्या ही मिलेगा, बद्ध ही मिलेगा. सो कृष्णा फाउंड अ वे आउट. सो whenever we are stuck in life, है ना, and and we are in a very desperate situation and we find no way out, है ना, we need to take shelter of that supreme personality of Godhead Krishna, who knows the way out, and that is what we call Krishna willing, है ना, that is what we call Krishna willing. And why can we depend on Krishna, why can we depend on the independent? बिकॉज भगवान का एक बड़ा एक नाम है जिसका द नेम इज असम ऊर्ध्वा. देयर इज दिस, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, विच मीन्स दैट नो वन इज इक्वल और ग्रेटर देन हिम. भगवान के बराबरी भी कोई कर नहीं सकता और उनको असेंड भी कोई कर सकता. असम ऊर्ध्वा. एंड इसलिए कृष्णा इज द Supreme Personality of Godhead. He is the primeval Lord. Intelligence will be, हम तभी इंटेलिजेंट माने जाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ेंगे, है ना, क्योंकि दैट नीड्स टू बी आवर अल्टीमेट अबोर्ड, है ना. दैट इज वेयर आवर रेस्टिंग प्लेस शुड लाई, नॉट ऑन द पिलोज ऑफ योर बेड, बट इन द फीट, under the feet of Krishna, not even over Krishna's feet, under Krishna's feet. So इस फर्स्ट श्लोक में विदाउट एनी डाउट, है ना, सबसे पहले श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की जो अथॉरिटी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसका बखान किया गया है ना. अंडर द सर्कमस्टेंसेस there is no doubt about the authority of Srimad Bhagavatam. This is what Srila Prabhupada says. And ये भागवतम का चलो अगर उल्लेख 5000 साल पहले से पहले और बहुत पहले हुआ, लेकिन अभी 500-600 साल के अंतर्गत ही हमारे इतने एरुडाइट स्कॉलर्स एंड वैष्णवाचार्यस आए, लाइक जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, है ना, जिन्होंने इस पर कॉमेंट्रीज लिखी हैं, है ना. तो श्रीमद् भागवतम को जब हमने रेलिश करना हो तो हमें अपनी इन अथॉरिटीज़ के अंतर्गत रहकर करना चाहिए, इस एसोसिएशन में करना चाहिए. एंड बहुत बखान होता है वैष्णव सोसाइटी में, कहते हैं कि वाई आर यू रीडिंग द कॉमेंट्रीज ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कहते हैं वाई आर यू रीडिंग द कॉमेंट्रीज ऑफ बलदेव विद्याभूषण, है ना. They downplay our Vaishnav scholars and our पूर्व प्रतिष्ठित गुरुस. सो उसका जो खंडन है वो श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में करते हैं और कहते हैं, द सीरियस स्टूडेंट would do well to attempt to go through
them to better relish the transcendental messages. श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है. और इससे पहले, let me read the entire passage. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jeev Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Vallabh Acharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam, and the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. So Srila Prabhupada himself is saying that these commentaries should be taken seriously and should be read properly, scrutinizingly, but chronological order में. First read Srila Prabhupada's commentary, right? Read all Srila Prabhupada's books. ISKCON की पूरी लाइब्रेरी जब आप चट जाओगे, ठीक है, और आपके हृदय में उसका वास होगा, तब सोचना पढ़ने की, ठीक है. Srila Prabhupada is just like Hanuman. So Hanuman is just like a bumblebee. A bumblebee goes to many flowers, ठीक है, takes the extract and deposits in the honey. Deposits the honey in that comb. Honey comb जो है ना, उसमें वो deposit कर देता है. तो श्रील प्रभुपाद ने जो सारे जो हमारे ये जो वैष्णव स्कॉलर्स हैं, एक मधुमक्खी की भांति सबके पास गए हैं, सबका रस लिया है और एक जगह इकट्ठे कर दिया है अपनी कमेंट्रीज में. सो इफ़ यू रीड श्रील प्रभुपाद्स कमेंट्रीज, यू आर गुड टू गो. लेकिन अगर पेट में चुन्ने काट रहे हैं, ठीक है, और अगर कीड़ा है, तो फील फ्री टू इंडल्ज इन दिस राइट क्रोनोलॉजिकल मैनर. And on that note, we will end today's picturistic reading session on Srimad Bhagavatam 1.1.1, right? And I just hope कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो, ये पिक्चरिस्टिक रीडिंग सेशन अच्छा लगा हो, राइट? एंड आई होप कि आप भागवतम की ओर ज़रूर देखें, क्योंकि यू विल बी फुल ऑफ लव फॉर कृष्णा and his associates. You will be full of love for Krishna and also those people who are not his associates. है ना? A Vaishnava not only loves other Vaishnavas, but he or she has love for everyone. When you worship the all-pervasive, your love becomes all-pervasive as well. है ना? You have love, you have humility and compassion towards other jivas as well, क्योंकि आप उनमें भी भगवान का वास देखना शुरू करते हैं, है ना? You can see the hand of Krishna in everything. You are more inclined to leave it to Krishna. You are more inclined to will it on Krishna, है ना? Your will becomes Krishna's will, है ना? So if we ever even hypothetically plan on saying Krishna willing followed by a sentence of our own making, है ना, it's very necessary कि हम भगवान से अपना एक संबंध जो है उसको सशक्त करें, है ना? उसको सशक्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. So thank you so much for attending today's session. All references were made from Srila Prabhupada's commentary on Srimad Bhagavatam, right? एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड आप इससे अपने जीवन में सीख लें और इसको अपने जीवन में उतारें और आपकी भक्ति और प्रोग्रेस करें, है ना? मे यू बी फुल ऑफ लव फॉर कृष्णा, है ना? when you will be full of love, only love will come out, है ना? When you are full of bhakti, it will show in various ways in your ordinary walks of in your ordinary day-to-day walks of life. So on that note, vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you so much for attending today's session. A very good morning. Please get back to your occupational duties. बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस फ्राइडे ख़त्म होने वाला है. वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द सैटरडे, है ना? जिनका सैटरडे को भी काम होता है, माई कंडोलेंसेस. वांछा कल्पतरुभ्यश्च, है ना? ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, हरि बोल.